A very good evening to all of you. Thank you so much for joining me for today's session. And today's topic is stop translating in your head. Okay, so now you are all future civil servants. Am I right or no? किसको किसको कन्विक्शन है दैट वी विल बी फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स? फटाफट इन चैट बॉक्स. Okay, yes. So, now that you are an UPSC aspirant, you are expected to have content, right? That is why we do Hindu editorial analysis in class. But content is one thing. Content is your kingmaker. Kingmaker. But what about your expression? When it comes to written, it comes to words, like writing words. But when it comes to speaking English, it means you are able to deliver your thoughts via using your mouth, right? But I have often heard my students saying that while we speak, we often get stuck in English. Can you tell me why do we do so? Like, what's the reason behind it? Quickly tell me in the chat box. What's the main reason, according to you, that when it comes to speaking English, we often say that we get stuck? How many of you will agree with me on this? Comment me in the chat box. Quickly. How many of you agree with this? No answers? Nobody gets stuck while delivering anything? मैं पूछ रही हूं, अगर मैं आपसे कुछ पूछती हूं, तो डू यू फील कि हम स्टक हो जाएंगे या फिर हम डरते हैं बोलने से? सो नाउ आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड इट? कि हम क्यों डरते हैं कि हम स्टक हो जाएंगे जब बोलने की बात आती है? ओके, let me give you the answer straight. So, we fear of getting stuck because we start translating in our head. So, what happens is first, so what is the act? What do you think is actually leads you to the production of speech? So, first of all, we will have our thoughts, right? But when it comes to speaking in English, the thoughts in our mind are in Hindi, but we end up translating it into English, and that is why that sense of low confidence, poor structure, low fluency, that happens because we are translating each and everything into English. We do not think in English, but we translate in English, and that is where the problem lies. Now, today I'm going to tell you that how we can actually stop translating in our heads and we can actually start thinking in English itself. So basically, we can have thoughts in English itself. Quickly jump to first point, tips for thinking in English. I will give you 10 tips, and by the end of the session, I wish that each of my students implements these tips in classes because I believe in you that you can actually speak fluently. If I can believe in you, I believe you also can believe in yourself. Can you do that for me quickly? Can you believe in yourself for me that we can be fluent speakers? Great. Let us begin then. First point, use visuals and contextual associations. Now, what do I actually mean by using visual and contextual associations is first, visualize words instead of translating them. Meaning thereby, मान लेते हैं कि आपके सामने कोई एक ऐसा वर्ड आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है. मान लेते हैं हैप्पी. हैप्पी आपके सामने एक वर्ड आया और उसका एक सिनोनिम आपके सामने आता है जिसे हम कहते हैं एग्जॉल्टेड. अब चांसेस है कि अगर आपने एग्जॉल्टेड पढ़ लिया तो आप उसको भूल जाएंगे. आपको उस समय क्या याद रखना है? आप अपने फ्रेंड को याद कर सकते हो कि जब वो खुश था तो वो उसने कैसे रिएक्ट किया. इस तरीके से आप उन चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे. आपको एक कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा जो कि आपका दोस्त था, उस टाइम पे क्या ऐसी बात चल रही थी जो वो इतना खुश हुआ, राइट? जिसे हम कहते हैं इलेटेड. A very happy birthday to you, Khushbu Kumari. May God bless you and you achieve all your dreams. Okay. I wish you great success. Okay. Now,
Second point, use picture flashcards or labels with only English text. ये सबसे अच्छा तरीका है, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, बट आई स्टिल यूज दिस ट्रेडिशनल मेथड इन माय क्लासेस. व्हाट यू कैन डू इज कीप अ पिक्चर. आप एक पिक्चर रखो, मान लेते हैं एक हैप्पी बॉय की, और उससे जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं आप उसको लेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरोज. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एआई टूल्स व्हिच गिव्स यू दैट फैसिलिटी कि आप फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स. So I want you guys to find that AI tool for me wherein you can create picture flashcards and write words associated with that flashcard. Okay. Third, group words into themes with visuals. मान लेते हैं कि आपके पास एक वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी, तो आप उसको ओवरआर्चिंग थीम के साथ कनेक्ट कर लो, दैट इज forest. Now these are some tips that you can actually apply, and यही सब चीजें हैं that will actually make you a fluent speaker. ये टिप्स हम नॉर्मली क्लासेस में नहीं डिस्कस करते हैं बिकॉज टीचर्स यूजुअली जंप टू डिस्कसिंग ग्रामर एंड vocab. But what actually goes behind you guys to make a fluent speaker are actually these tips. Okay, let us move to the second point. Develop an English inner monologue. Now you guys tell me, what do you mean by inner monologue? What do you mean by inner monologue? आपके हिसाब से इसका मतलब क्या है? मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? Quickly. Guys, concentrate in the class. I'm asking you, what is the meaning of inner monologue? Okay, मैं बताती हूँ इनर मोनोलॉग का मतलब क्या होता है. जब हम खुद से बातें करते हैं ना, हमारे अंदर 24 आवर्स कोई ना कोई थॉट चल रहा होता है. अच्छा, इस क्लास के बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ी देर बिंज वॉचिंग करूंगा, बिंज वॉचिंग करने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा, रेस्ट करने के बाद मैं रात को उठूंगा. हाँ, मैं 4 बजे नहीं 5 बजे उठूंगा. इसे हम कहते हैं इनर मोनोलॉग. सो वी आर कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व इन इनर मोनोलॉग. लेकिन ये सब मैंने किस में किया, किस लैंग्वेज में किया अभी मैंने इनर मोनोलॉग? सेल्फ टॉक, ऑफ कोर्स मैंने माइंड में तो किया, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में किया? अभी जो मैंने किया वो मैंने हिंदी में किया. यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ट्रेन करना है कॉन्शियसली कि जो भी हम इनर मोनोलॉग अपने साथ कर रहे हैं, हम कौन सी लैंग्वेज में करें? इंग्लिश में. Now, narrate your daily life in English silently. For example, I am preparing notes. Not that कि मैं notes बना रहा हूँ. Meaning thereby, दिन में आप कुछ भी activity कर रहे हो, उससे you are eating food, you are about to meet a friend, you are having a conversation on phone with a friend, you are about to leave for a dinner, you are about to go for a drive, whatever conversations you have with yourself, okay, जिसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, वो सब आपको कौन सी लैंग्वेज में करनी है? इंग्लिश में. जब थॉट आए ना कि भाई हिंदी में आ रहा है, कट कर दो उसको वहीं पे और स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. दैट इज हाउ यू विल कॉन्शियसली ट्रेन योर माइंड, योर हार्ट एंड योर बॉडी टू थिंक इन इंग्लिश. ओके, आपकी सब चीजें इंग्लिश बोलने लगेगी. ठीक है, ऑफ कोर्स लिटरली नहीं बोलने लगेंगे हम, हमारी बॉडी इंग्लिश नहीं बोलेगी, इट इज मेटाफोरिकली. व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफोर? मेटाफोर मतलब हम किसी चीज को किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं. मतलब ही इज एज फेयर्स एज अ लायन. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लायन लिटरली बन गया, मतलब उसके पास ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो लायन बन गया, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि each of us student present in the class to train ourselves so that we can actually speak in English. Okay, अब आपको क्या करना है? समराइज हिंदी न्यूज आर्टिकल इन इंग्लिश टू शिफ्ट योर थॉट प्रोसेस. बहुत जरूरी चीज, मान लेते हैं कि आपने कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा, ओके, और वो हिंदी में है. आपको क्या करना है? आपको उसको समराइज करना है इंग्लिश में कॉन्शियसली. अगर कोई भी चीज हिंदी में सामने आ रही है, उसको ट्राई करो वर्ड बाय वर्ड, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. इससे जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो धीरे धीरे अपने आप से इंग्लिश में शिफ्ट होने लगेगी. आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक टाइम आएगा जब आप कॉन्शियसली
इंग्लिश में सोचने ही लग जाओगे, आपको कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। आई मीन सॉरी, आई मीन टू से सबकॉन्शियसली आपका एक पार्ट बन जाएगी इंग्लिश, आपको उसमें कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट, जो भी आज मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो सब आपके काम आने वाले हैं अगर आप इंटरव्यू में दे रहे हो या फिर आप कुछ रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, मीनिंग देयर बाय ऑफ कोर्स आपको एसेस लिखने ही लिखने हैं, राइट। तो प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज मेंटली इन इंग्लिश। मान लेते हैं आप अपने कोई इंटरव्यू देखा, ठीक है, आपने उससे कुछ सीखा, आप आपने कुछ क्वेश्चन सुने, उस बच्चे ने कुछ आंसर करे इंग्लिश में, अब आप उसको रिहर्स करो, आप उसको ट्राई करो इमिटेट करने का और प्रोसेस करने का मेंटली इन इंग्लिश। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं शैडो नेटिव स्पीच। शैडो नेटिव स्पीच का मतलब होता है हम रियल टाइम रिपीट कर रहे हैं नेटिव स्पीकर्स को, जिसे हम कहते हैं शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक, देखो, अगर हम लाइट में खड़े होते हैं, राइट, तो हमारी एक शैडो बनती है और वो एज इट इज बनती है, राइट। तो अब हमें इंग्लिश में क्या करना है, हमें इमिटेट करना है नेटिव स्पीकर्स को, जिसे हम जो हम कैसे कर सकते हैं, रेपिटेशन से। We have to listen to English speakers and repeat simultaneously। जैसे जैसे वो बोल रहे हैं उनके उनके साथ आपको रिपीट करना है वर्ड बाय वर्ड। हम कई बार करते भी हैं ऐसे मजे मजे में, जो कुछ बोल रहा होता है ना कोई, हम साथ साथ बोलने लग जाते हैं जस्ट फॉर फन सेक, पर हमें पता नहीं है एक्चुअली इसके पीछे कौन सी टेक्निक जा रही है, जिसे हम कहते हैं शैडोइंग टेक्निक, बेसिकली इमिटेटिंग द नेटिव स्पीकर्स एंड देयर नेटिव स्पीच। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप क्या यूज कर सकते हो इसके लिए। यू कैन यूज यूपीएससी इंटरव्यूज या फिर कोई भी न्यूज क्लिप्स, बीबीसी यूज कर लो, इंडिया टुडे यूज कर लो, कोई भी न्यूज चैनल जो आपको पसंद है उसकी न्यूज क्लिपिंग्स को आप सुनो, देखो कि वो एंकर्स कौन सा रिदम पिक कर रहे हैं, कौन सी पेस यूज कर रहे हैं, कब वो पॉज ले रहे हैं, कहाँ से उनकी इंटोनेशन हो रही है, मतलब कहाँ से उनके स्पीच में ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। वो सारी स्पीच ऐसे तो देंगे नहीं, हाँ आई एम शिवांगी गांधी, आई एम दिस, आई डू दिस, है ना, ऐसे तो देंगे नहीं। वो अपनी स्पीच को टर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहां उनको लगेगा पॉज करना है वो वहां पे पॉज करेंगे, जहां उनको लगेगा सिचुएशन टेंस है तो उसी के हिसाब से वो फोकस करते हैं। और यही सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा ना, आप उनके नेचुरल फ्रेजिंग सीख जाओगे। जो चीजें जो नेचुरल फ्रेजेस वो यूज करते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज में फ्रेजेस यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो आप कॉन्शियसली सीखना शुरू करोगे। और जब आप ये सीखना शुरू कर जाओगे और आपके में आना शुरू हो जाएगा, तो आपको ट्रांसलेशन की नीड कम होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रांसलेशन बुरी चीज है, ट्रांसलेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये आपको स्लो बना देती है। जितना टाइम तक आप प्लानिंग और मैनेजिंग में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो और फिर आपकी आर्टिकुलेशन स्लो हो जाती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पुअर हो जाता है, आपकी फ्लुएंसी खराब हो जाती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी जो ये एक्यूरेसी है वो भी इफेक्ट होती है। इसको क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दैट इज रिटन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वो हम अलग से क्लास रखेंगे कि हम कैसे अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इससे मुझे याद आया, जो बच्चे हम मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू डाउनलोड आवर ऐप एंड ज्वाइन अस ऑन अ टेलीग्राम चैनल। The links of both are given in the description box. Also, you can join me for more such tips in my classes. Let me just make you go through the course content. If you like it, please join our classes. There is much more things that we discuss in class which we are not able to discuss here because of shortage of time. So let me just quickly take you through that process. Just give me a second. Okay, is my board visible to you guys? I hope it is visible, right? So as I was discussing, if you like my classes, you can join me through a course that is Civil Hindi PDF classes for UPSC and PSC preparation. Let us understand in brief
how does Civil Hindipedia actually work, and what are the classes that we take? Okay. Subjects in UPSC, we cover history, Indian society, international relations, art and culture, geography, Indian polity, governance, economics, science and technology, social justice, ethics, integrity and aptitude, environment, internal security, disaster management, agriculture, case studies, a very important thing, real life situations, comprehension, basic numeracy, English language, you will of course see me in your classes, interpersonal skills and communication, of course, for your interview, Indian language, essay paper, of course, you have to write paper, and that is in essay format, logical reasoning and analytical ability. Civil Hindipedia batches, the prices are very less because we want each of our students should excel, should be able to get the quality education you are actually looking for. Current Affairs 360 by Niharika ma'am. June to November 25 GS and CSET batch. GS and CSET batch again, that is yearly. UPSC school batch, if you think that your siblings have interest in UPSC, you can actually bring them to our platform. Starting June 1, we will be starting a whole new series of a UPSC school batch. I hope I will see you in my classes. Now quickly let us go back to our class and discuss how we can actually stop translating in Hindi and we start to think in English. Great. We were on, we have discussed 3 points. Now let us quickly move to point 4. मेमोराइज, आप मेरी तरह इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है. आई एम नॉट अ नेटिव स्पीकर, ठीक है. मैंने भी अपने आप को यही सब चीज़ों से, यही सब हैक से ट्रेन किया है. मैं भी बहुत फंबल करती थी, मैं भी बहुत डरती थी, मेरे अंदर भी बहुत नर्वसनेस थी, मैं भी टीचर के आगे नहीं बोल पाती थी. लेकिन मैंने भी प्रैक्टिस किया, मैंने भी अपने आप को ट्रेन किया, मैंने वो सारी ट्रिक्स यूज़ करी जो टीचर्स ने मुझे बताई, and now here I am in front of you. So you have to understand that you have to believe in me, and then you have to believe in yourself, and together we can do wonders. Okay, you are able to see my screen or not? Screen नहीं दिख रही है, स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं. ओके, ठीक है. तो पहले दिखा था जो मैंने पहले बताया था. ओके, चलो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन, फिर दिखेगा. चलो, memorize and use collocations, right? Learn common English phrases groups. ठीक है. मैंने, अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कॉलोकेशन क्या होता है. व्हाट इज कॉलोकेशन? व्हाट इज कॉलोकेशन? जल्दी जल्दी, व्हाट इज कॉलोकेशन? कॉलोकेशन कौन से वर्ड्स होते हैं? वो एक ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साथ में जाते हैं. सो आपको क्या करना है, ऐसे इंग्लिश फ्रेज ग्रुप्स को आपको थोड़ा ट्राई करना है कि आपको वो पता हो, और ट्राई करो कि आप उनको लर्न कर पाओ, जैसे मैंने बोला, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. और जब आपने ये कॉलोकेशंस, ये लेक्सिकल चंक्स मतलब ये ग्रुपिंग्स, जो कॉलोकेशन, जो वर्ड साथ में जाते हैं, अगर आपने वो थोड़ा सा ट्राई किए, लर्न कर लिए, और अब आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आप अगर कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, वो फ्रेजेस को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करो. इससे क्या होगा ना, जो हम एक एफर्ट लगाते हैं ना वर्ड बाय वर्ड एक सेंटेंस बनाने का, वो कम हो जाएगा. क्योंकि कॉलोकेशन में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर, राइट. तो आपकी जो ये प्रैक्टिस है ना, कि जो हम बनाते हैं वर्ड बाय वर्ड एक सेंटेंस, वो एफर्ट आपका कम लगेगा. यूपीएससी कॉन्वर्सेशंस में आप कौन से फ्रेजेस
प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर इंटरव्यूज एंड डिस्कशंस, जैसे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इट इज इम्पेरेटिव, इन द लाइट ऑफ रीसेंट इवेंट्स, ऑन द अदर हैंड। तो ये सारे फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो। पहले तो आप इनको इम्बाइब करो, मीनिंग देयर बाय आप इनको लर्न करो, ठीक है। कैसे लर्न करो मैंने बताया था, कॉन्टेक्स्ट में। जब आप कॉन्वर्सेशन सुन रहे हो तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, वहां से वो फ्रेजेस निकालो, वहां से वो कॉलोकेशन निकालो, फिर उनको प्रैक्टिस करो। कैसे करो? कोई किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ एक मॉक इंटरव्यू कर रहे हो, तो वहां पे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है मेमोराइज एंड यूज कॉलोकेशंस, राइट। फिफ्थ पॉइंट है प्रीलोड सब्जेक्ट वोकैबुलरी डायरेक्टली इन इंग्लिश। प्रीलोड का मतलब है अगर कोई टॉपिक है तो उसकी वोकैबुलरी आपके दिमाग में पहले से ही लोड होनी चाहिए, आपके डेटाबेस में ऑलरेडी वो सारी वोकैबुलरी उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? स्टडी यूपीएससी रिलेटेड टॉपिक्स को आप इंग्लिश में पढ़ो। जो भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड आप उनको इंग्लिश में पढ़ो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्ड माइंड मैप्स। याद है पहले मैंने आपको कहा था कि आप फ्लैश कार्ड यूज करो, अब मैं कह रही हूँ कि आप माइंड मैप्स भी यूज करो, ठीक है। बिल्ड माइंड मैप्स विद इंग्लिश की वर्ड्स ओनली, ठीक है। जैसे मैंने बोला एजुकेशन, एजुकेशन से जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड टीचर, स्टूडेंट, एआई, गेम्स, टूल्स, कैसे हम एजुकेशन को एनहांस कर सकते हैं, गवर्नमेंट, कुछ भी जो चीजें हैं ना जो आपके आपके दिमाग में आ रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके आप कीवर्ड्स बना लो, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड है जिनको आपको लगता है कि हाँ अगर मैं इस वर्ड को रिप्लेस कर सकता हूँ सिनोनिम से तो मेरी ना ये वोकैबुलरी इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी एनहांस हो जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हो। सो बेसिकली एक माइंड मैप बनाना है आपको विद इंग्लिश कीवर्ड्स ओनली, ओके। अब आपको क्या करना है, यूज इंग्लिश कीवर्ड्स इन प्रैक्टिस रिस्पॉन्स टू एम्बेड देम डीपली। देखो कुछ भी चीज आप कर रहे हो, आपने विजुअली प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्लैश कार्ड्स बना के दिमाग में अपने कीवर्ड सेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सो देयर विल बी नो प्रोग्रेस। Practice leads to perfection, but practice also leads you to progress. So, अगर आपको कुछ भी चीज लर्न करनी है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, चांसेस आर दैट यू विल forget it and it will just become a part of your memory. आप जो चीज जिस पे काम करना चाहते हो, जो स्किल सेट पे काम करना चाह रहे हो, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो वहीं का वहीं स्टैग्नेंट ही रह जाएगा, राइट। Timed spontaneous speaking drills, again a very important thing if you are a UPSC aspirant। 1 मिनट का टाइमर लगाओ एंड स्पीक इंस्टेंटली ऑन यूपीएससी टॉपिक्स। आप इंटरव्यू पे गूगल कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 1 मिनट का टाइमर लगाओ और उस पे बिना कुछ सोचे समझे कि मैं फंबल कर रहा हूँ, मेरी ग्रामर खराब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप टाइमर लगाओ और सीधा यूपीएससी टॉपिक्स पे बोलना शुरू कर दो। मैंने साफ साफ लिखा है इवन इफ इट इज इम्परफेक्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल अचीव परफेक्शन, बट अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वी विल रिमेन इम्परफेक्ट, राइट। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप फ्लुएंसी में आएंगे थ्रू रेपिटेशन। जब आप सुनोगे, जब आप अपने आप को बाद में सुनोगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे और इससे आपकी स्पीड में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। आप टाइम कम लोगे सोचने में। अक्सर क्या होता है, वी टेक मोर टाइम इन प्लानिंग, ठीक है, प्लान ज्यादा करते हैं और इस वजह से हमारी आर्टिकुलेशन स्लो हो जाती है। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, वी टेक टू मच टाइम इन मैनेजिंग। इस प्रैक्टिस से यू कैन रिड्यूस दैट टाइम ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश एंड यू कैन टेक अ फ्यू सेकेंड्स एंड जस्ट dive into that topic there and there itself. Again, this is something I tell my students again, monitor and correct yourself. Again and again, this is something I tell my students कि अपने आप को रिकॉर्ड करो
और अपनी स्पीच को रिव्यू करो। स्टार्टिंग में आप अपनी गलतियां नहीं पकड़ पाओगे बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी, बट अगर जर्नी को स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, राइट? तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करो और रिव्यू करो धीरे धीरे कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे मैं फिलर यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, अगर मैं अटक रहा हूँ तो क्यों अटक रहा हूँ, अच्छा ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ तो क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक चल रहा है या फिर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत कर रहा हूँ। और ये देखो कि कहाँ आपकी हिंदी आपको स्लो कर रही है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा टाइम आता है क्या कि आपके दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते और आपको लगता है यार ये वाला वर्ड ना हिंदी में ही बोल देता हूँ। वो आपको और ध्यान से देखना है और देखना है कि उसकी जगह पे मैं क्या बोल सकता था उस टाइम पे जो मैं नहीं बोल पाया, और या फिर मैंने इतना टाइम क्यों ले लिया, मैं क्या सोच रहा था हिंदी में और मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ जल्दी। तो आपको रीफ्रेज करना है और फिक्स करने हैं अपने पैटर्न को कॉन्शियसली। प्रैक्टिस, परसिस्टेंस, बीइंग कॉन्शियस, ट्रेनिंग योर माइंड, यही सब चीजें हैं। विद दीज टिप्स आई एम श्योर यू विल बी एबल टू एस इंग्लिश वेरी सून। एज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर यू विल कम आउट वेरी सून। ओके, हम अपनी क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, हम पर्सनालिटी टिप्स भी डिस्कस करेंगे, हम इंटरव्यू टिप्स भी ऑफ कोर्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम छोटी छोटी ब्रीफ में चीजें डिस्कस करते हैं सो दैट हमारी क्लासेस जो हम मेन क्लासेस करते हैं उनको ये चीजें मिलके एक होलसम चीज बन सके। प्रैक्टिस मीनिंग टू इंग्लिश आउटपुट। अगेन मैंने क्या बोला कि पहले आपको पैराफ्रेज करना है इंग्लिश टेक्स्ट को अपने वर्ड्स में, जिसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग टेक्निक। पैराफ्रेजिंग टेक्निक, इसमें आपकी दो चीजें यूज होती हैं। एक तो आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हो, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, फिर आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो। प्रोडक्शन किसकी? आउटपुट दे रहे होते हो। किसका? वर्ड्स का। कौन से वर्ड्स का? स्पोकन वर्ड्स का। हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपका दो चीजें यूज हो रही हैं, आप अपना दिमाग से पहले तो उसको समझ रहे हो और फिर उसको प्रोड्यूस कर रहे हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आप हिंदू एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि आप पूरा पूरा एडिटोरियल एक बार में पढ़ो, एक पैराग्राफ उठाओ और उसको एक लाइन पढ़ो और फिर उसका एक मीनिंग अंडरस्टैंड करो कि उस लाइन का ओवरऑल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। सेकेंड, मैंने बोला आप एवरीडे सिनेरियोज भी यूज कर सकते हो। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया, आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो कि वो गेस्ट आया, ही वाज वेरी पोकी, आई गॉट वेरी डिस्टर्ब, कुछ भी जो भी हिंदी सिनेरियोज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, बस आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हमें क्या ट्राई करना है, हमें बस ट्राई करना है। ट्राई ट्राई करना है कि हम जो भी करें हम इंग्लिश में ही करें। यूज टीच बैक मेथड। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा आज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आपने कुछ एआई टूल्स पढ़ लिए, ठीक है, उस एआई टूल्स में आपने कोई स्पेसिफिक टूल्स पढ़ लिए जैसे चैट जीपीटी पढ़ लिया, डीप सीक पढ़ लिया, ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपने एआई पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ लिया, मैं कह रही हूँ A to Z, ठीक है। आपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको समराइज करो, फिर जाके ना अपनी मम्मी को बताओ इंग्लिश में कि मैंने ना ये पढ़ा है। आपको बस एक्सप्लेन करना है अलाउड, ठीक है, या आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। वैसे भी हम रोज कुछ कुछ ना कुछ तो डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो डिस्कस करें बस उसको टीच करना है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में। Again, a very important point, think in headlines and speak in explanations. आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़ चल रही है, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि न्यूज़ चल रही है कि हमने लास्ट नाइट इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, एंड हमने क्या किया, बेसिकली वी अवेंज्ड देम फॉर द अटैक दे डिड, है ना। तो मैंने क्या बना दिए, एक क्रिस्प हेडलाइन बना दी है। मुझे क्या करना है, कुछ भी न्यूज़ चल रही है, मुझे हेडलाइन बनानी है उसकी। कैसे? बड़ी छोटी सी। अभी मैंने क्या बोला, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान लास्ट नाइट टू अवेंज, बेस, बस खत्म। कुछ भी आपने न्यूज सुनी, आपको एक हेडलाइन बनानी है, ठीक है।
और कैसे एक्सप्लेन करनी है, जैसे आप एक न्यूज एंकर हो, जैसे एक न्यूज एंकर हिंदी में कहते हैं ना, आज की ताजा खबर, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में, आपको सेम इंटोनेशन ना इंग्लिश में लेके आनी है। Today's today's news is that India attacked Pakistan last night to avenge. Now, what do you think will be the future course? What do you think Pakistan will do? ऐसे ही बोलते हैं ना न्यूज एंकर्स। तो आपको एम्फोसाइज करना है, ठीक है, आपको न्यूज एंकर की पोजीशन लेनी है। देखो कितनी फन लर्निंग है ना ये चीजें, अगर हम रिलेट करें ना और अगर हम ये चीजें प्रैक्टिस करें तो ये बहुत फन है इंग्लिश करनी, ठीक है। हेल्प स्ट्रक्चर योर थॉट इन इंग्लिश इंस्टेंटली। मैंने अभी अभी स्ट्रक्चर किया, मेरे दिमाग में पहले से थोड़ी था कि मैं अभी आपके साथ ये वाला यही डिस्कस करूंगी इंसिडेंट, लेकिन मैंने किया। क्यों? क्योंकि मैं सोचती इंग्लिश में ही हूँ, राइट। मैंने थॉट प्रोसेस अपना वैसे ही डेवलप कर लिया है। स्लाइड दिख रही है नेहा? रिफ्रेश, ठीक है। यूज रोल प्ले विथ आइडेंटिटी शिफ्ट्स। देखो, माय डैड ना, मुझे मेरे पापा ना हमेशा बोलते हैं, माय डैड ऑलवेज यूज टू टेल मी दैट वट एवर यू विश टू बिकम, ट्राई टू बिहेव लाइक दैट पर्सन, ठीक है। अगर आप अपने आप को एक सिविल सर्वेंट की तरह देखते हो, you should adapt into that role. I'm not talking about only in English, but otherwise your habits, your discipline, your sense of humor, मतलब आपको your sense of punctuality, your sense of discipline, आपकी जो भी चीज, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स, यू बीइंग क्रिटिकल, यू बीइंग प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से टू गेट इनटू दैट रोल ऑफ आईएएस। जो भी आप बनना चाहते हो उसको दिमाग में इम्प्लीमेंट करो, तभी वो मैनिफेस्ट होता है। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू इमेजिन माई सेल्फ दैट आई विश टू बी, you know, somebody who can actually bring a change in the lives of students, and I actually here I am doing that with you guys. तो जो भी आपको करना है ना लाइफ में उसको इमेजिन करो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो अडाप्ट योर सेल्फ इन टू दैट रोल्स। मान लेते हैं कि डाउन द लाइन यू बिकम सिविल सर्वेंट, now you will have to communicate with your colleagues in English. How will you do that? How will you respond? How will you greet? How will you sit? How will you stand? ठीक है, हाउ विल यू मेंटेन योर ऑरा, कि जब कोई रूम में आए ना तो कोई लोग कहें कि यार दिस इज द सिविल सर्वेंट, ये सिविल सर्वेंट है भाई जो इतनी प्रैक्टिस करके आया है, जो आज यहाँ पे हमारे सामने खड़ा, और ये डिजर्व्स टू बी हियर, ओके। सो स्पीक ओनली इन इंग्लिश वाइल एक्टिंग इन दैट रोल। अपने आप को इमेजिन करो कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं ऑलरेडी सिविल सर्वेंट बन गया हूँ, मैं कैसे कन्वर्स करूंगा। शिफ्ट योर माइंडसेट एंड बाईपास योर हिंदी थिंकिंग। आज का कंक्लूजन ये है कि अपने माइंडसेट को चेंज करो, स्टॉप थिंकिंग इन इंग्लिश एंड stop thinking in Hindi and start thinking in English, and you'll see yourself the change, the difference that you were actually looking for from a really long time. Any doubts, any questions? Thank you so much. That's it from my side. I hope you enjoyed my class. For more such classes, please join me on 7 p.m. every Wednesday. I am Shivangi Gandhi, your English master teacher. Okay. Thank you, thank you, thank you. Take care, stay safe. Spread positivity, spread love. Great. Okay, then. Bye bye. Take care.